Explain the notification from the Federal Board of Intermediate and Secondary Education dated 25th August 2022. The subject of this notification is the guidelines for SLO based examination. So basically, in this notification, they have given the name of the publisher or of textbook and reference books of the 8 subjects, and then they have given the definition of cognitive level subject wise and definition of command word that are also subject wise. So I will start it one by one, and today we will start from the physics. When we see in the physics, the curriculum or syllabus is based on 2006, and at SSC 1 or 9th class level, the reference books are Karma Book House Lahore, Khyber Pakhtunkhwa Textbook Board Peshawar, Balochistan Textbook Board Quetta, and National Book Foundation Islamabad. And for SSA 2 or class 10th, Malik Sirajuddin and Sons Lahore, Khyber Pakhtunkhwa Textbook Board Peshawar, Balochistan Textbook Board Quetta, and National Book Foundation Islamabad. Now we move to the definition of cognitive level of the physics. As you know that paper is divided into 3 categories, or it can be assessed on the knowledge, understanding, and application. So for physics, the knowledge, this requires knowing and remembering facts and figures, vocabulary and context, and the ability to recall key ideas, concepts, trends, sequences, categories, etc. It can be taught and evaluated through questions based on. It means the question could be start from these words: who, when, where, what, list, define, describe, identify, label, tabulate, quote, name, state, etc. So these questions will be included on the knowledge based questions. On the understanding based, this requires understanding information, grasping meaning, interpreting facts, comparing, contrasting, grouping, inferring cause and reasons, seeing patterns, organizing parts, making links, summarizing, solving, explaining, proving, identifying motives, finding evidence. It can be taught and evaluated through question based on. Now the question will be based on the terminology that should be start with why, how, show, demonstrate, paraphrase, interpret, summarize, explain, prove, identify the main idea theme, predict, compare, differentiate, discuss, chart the course direction, report, solve, etc. On application level, this requires using information or concepts in new situations, solving problems, organizing information and ideas, using old ideas to create new ones, and generalizing from given facts, analyzing relationships, relating knowledge from several areas, drawing conclusions, evaluating worth, etc. It can be taught and evaluated through questions based on distinguish, analyze, show relationship, propose an alternative, prioritize, give reasons for, categorize, illustrate, corroborate, compare and contrast, create, design, formulate, integrate, rearrange, reconstruct, recreate, reorganize, predict consequences. Now the definition of command word of physics. The purpose of command words given below is to direct the attention of the teacher as well as the student to the specific task that students are expected to undertake in the course of their subject studies. Same command word will be used in the examination question to assess the competence of the candidate through their responses. The definition of command words have also been given to facilitate the teacher in planning their lesson in classroom assessment.
सो बेसिकली SLO बेस्ड एग्जामिनेशन में स्टूडेंट्स को सबसे बड़ा मसला, स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों को ये है कि उन्हें कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट दी हुई है उसके आंसर में वो कितना आंसर रिक्वायर्ड है। उसके लिए उन्होंने कुछ कमांड वर्ड्स दे दिए हैं। इन वर्ड के साथ उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है कि अगर क्वेश्चन इन वर्ड्स वाले क्वेश्चंस आते हैं तो उसके आंसर में आपसे क्या डिमांड उनकी होती है, आप क्या लिखेंगे कि आप फुल मार्क्स ले सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ एनालाइज। Describe with the use of graphs how information on two or more variable is related to other variables. जब आपको क्वेश्चन एनालाइज का आता है तो उसमें आप लोगों ने बेसिकली कोई सी इंफॉर्मेशन जो होगी उसमें दो या उससे ज़्यादा वेरिएबल्स को किसी दूसरे वेरिएबल से रिलेट करके आपने शो करना है विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। एनालाइज वाले क्वेश्चन में ग्राफ बनाना आपका लाजमी होगा। अप्लाई। Demonstrate the solution of problem by using the specified procedure. किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन जो दिया हुआ प्रोसीजर है उस टॉपिक से रिलेटेड, उस टॉपिक का जो प्रोसीजर है उसे फॉलो करके उस प्रॉब्लम का सलूशन जो है वो एक्सप्लेन किया जाए। मतलब ये है कि कोई भी आपको डिफरेंट सिचुएशन दी जा सकती है और उसमें आप लोगों ने उसी टॉपिक को, नॉलेज को यूज़ करके अप्लाई करना है बेसिकली नॉलेज को और उसका सलूशन बताना है। एसोसिएट। शो द इंटरकनेक्शन ऑफ फिनोमेना और फैक्ट। एसोसिएट में आप लोगों ने मुख्तलिफ फैक्ट्स और फिनोमेना जो है उनका आपस में कनेक्शन जो है वो एक्सप्लेन करना होगा कि उनका आपस में दो मुख्तलिफ टर्म्स, दो मुख्तलिफ फैक्ट्स जो हैं उनका आपस में वो एक दूसरे से रिलेटेड किस तरह से हैं। कैलकुलेट is used when a numerical answer is required. In general, working should be shown, especially where two or more steps are involved. कैलकुलेट में बेसिकली आपके न्यूमेरिकल में यूज़ होंगे जहां आप मुख्तलिफ वैल्यूज़ को यूज़ करके आंसर निकालते हैं और उन्होंने कहा है कि इसमें स्टेप्स जो हैं वो इन्वॉल्व होंगे, आपके हर स्टेप के मार्क्स होंगे। डिफाइन द टर्म्स और टर्म्स। ओनली अ फॉर्मल स्टेटमेंट और इक्विवेलेंट पैराफ्रेजिंग इज़ रिक्वायर्ड, नो एग्जाम्पल नीड टू बी गिवन। अब अगर आप डिफ़ाइन में देखें तो पहले हम ये लिखते थे कि एक डेफिनेशन लिखते थे और फिर उसकी एग्जांपल साथ देते थे। इसमें उन्होंने कहा है कि डिफ़ाइन टर्म जब होगा तो उस टर्म की एक फॉर्मल डेफिनेशन लिखते हैं या फिर अपने अल्फाज में बिल्कुल सही तरह से उस टर्म को एक्सप्लेन कर दें, पैराफ्रेज उसको कर दें और इसके साथ कोई एग्जांपल रिक्वायर्ड नहीं है। डिमॉन्स्ट्रेट implies that the candidate is expected to show how one thing is related to another. Usually it is a reference to theory but sometimes it is physical manipulation or experiment. तो demonstrate जो है उन्होंने कहा है कि वो दो कोई भी क्वांटिटी किसी दूसरी से किस तरह से रिलेटेड होती है। आमतौर पर उन्होंने कहा है कि ये थ्योरी में क्वेश्चन आएगा लेकिन ये आपका फिज़िकल मैनिपुलेशन और मतलब एक्सपेरिमेंट में भी आप लोगों के डिमॉन्स्ट्रेशन वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, थ्योरी में भी आ सकते हैं और एक्सपेरिमेंट्स में भी। डिराइव। डिड्यूस स्टेप वाइज अ फार्मूला फ्रॉम जर्नल फ्रॉम प्रिंसिपल और रूल। जर्नल फॉर्म, प्रिंसिपल और रूल। उन्होंने कहा है कि कोई भी एक जर्नल फॉर्म या आपको रूल पता हो उस रूल को आप अप्लाई करके स्टेप वाइज फार्मूला डिड्यूस करें। इसकी एग्जांपल यह है कि जैसे हम मोशन ऑफ इक्वेशन जो हैं वो डिराइव करते हैं तो उनके सारे स्टेप्स जो हैं रूल को फॉलो करते हुए सारे स्टेप्स लिखे जाएंगे, स्टेप वाइज उनके मार्क्स होंगे। डिस्क्राइब। टू स्टेट इन वर्ड्स यूजिंग डायग्राम्स वेयर अप्रोप्रिएट द मेन पॉइंट ऑफ द टॉपिक, इट इज़ ऑफन यूज विद रेफरेंस ईदर टू पर्टिकुलर फिनोमेना और टू पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट। In the former instance, the term usually implies that the answer should include reference to visual observation associated with the phenomena. डिस्क्राइब वाले क्वेश्चन जब होंगे तो उसमें आप लोगों ने बेसिकली उसी भी टॉपिक को के मेन पॉइंट्स जो हैं उन्हें आपने एक्सप्लेन करना है, डिस्क्राइब करना है। उसके लिए आप अगर डायग्राम्स हैं तो डायग्राम्स भी ड्रॉ कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि ये बेसिकली जो है रेफरेंस होता है किसी भी पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट या फिनोमेना से रिलेटेड होता है। तो अगर वो किसी चीज़ से रिलेटेड है तो उसका रेफरेंस जो होगा विजुअल यानी कि ऑब्जर्वेशंस हैं या जो भी उससे फिज़िकल विजुअल ऑब्जर्वेशंस वगैरह जो होंगी वो आपने भी इसमें इंक्लूड करनी है। डिटर्मिन।
often implies that the quantity concerned cannot be measured directly but is obtained by calculation, substituting measured or known values of other quantities into a standard formula. जैसे relative molecular mass, उन्होंने कहा है कि डिटर्मिन उस सूरत में आता है कि जब आप डायरेक्टली उसका आंसर आप उससे क्वांटिटी जो आपको चाहिए होती है उसे आप डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, बल्कि आप उसे दूसरी मेजरमेंट से रिलेट करके या दूसरी कैलकुलेशन के साथ रिलेट करके दूसरे फार्मूले अप्लाई करके आप लोगों ने वो फाइंड आउट करना है. फॉर एग्जांपल रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास जो है वो, अब आपको मॉलिक्यूलर मास पता होगा तो आप इससे रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज डिफरेंशिएट. आइडेंटिफाई दोज कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर द डिफाइनिंग फीचर ऑफ टू कंसेप्ट और फिनोमेना. डिफरेंशिएट में बेसिकली कोई से भी जो आपकी टर्म्स होंगी आपको दी जाएंगी, उनमें जब आपने डिफरेंशिएट करना है तो उसमें आपने उनके वो कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है, मेन डिफाइनिंग फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स जिससे आप वो उन दोनों में डिफरेंस कर सकें. डिस्कस. टू गिव अ क्रिटिकल अकाउंट ऑफ द पॉइंट इन्वॉल्व इन द टॉपिक. जब डिस्कस आएगा तो आपने उस टॉपिक को क्रिटिकली एनालाइज करना है. Draw and sketch implies a simple freehand sketch or diagram. Care should be taken with proportion and clear labeling of the parts. इसका मतलब ये है कि आपको बहुत परफेक्ट डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है. आपने फ्री हैंड स्केच या डायग्राम बनानी है. सिर्फ आपने उसमें ध्यान क्या रखना है, एक तो आपने उनके प्रोपोर्शंस का हिसाब रखना है. प्रोपोर्शन का हिसाब रखने का मतलब ये है कि फ़र्ज़ करें अगर आप ह्यूमन बॉडी बना रहे हैं तो ह्यूमन बॉडी में जितना हाथ का बॉडी के हिसाब से प्रोपोर्शन के हिसाब से साइज़ है, ये ना हो हाथ बड़ा हो और बॉडी जो है वो छोटी बना दी जाए. तो जो भी डायग्राम होगी उसमें प्रोपोर्शन का आपने ख्याल रखना है, साइज़ का ख्याल रखना है. और दूसरी बात ये है कि आप लोगों ने पार्ट्स की लेबलिंग जो है वो क्लियर कट करनी है. नेक्स्ट इज एक्सप्लेन. मे इम्प्लाई रीजनिंग और सम रेफरेंस टू थ्योरी डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट. अब एक्सप्लेन वाले जब क्वेश्चन आएंगे तो उसमें आप लोगों ने या तो रीज़न बताना है, जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसे एक्सप्लेन करने का कहा जाएगा, उसके रीज़न बताने हैं, या फिर उसको थ्योरी से रेफरेंस दे के उसे एक्सप्लेन करना है. गिव एग्जाम्पल्स. नेम स्पेसिफिक इंस्टेंसेस और केसेस टू डिमॉन्स्ट्रेट द अकरेंस ऑफ एन इवेंट और एग्जिस्टेंस ऑफ ए सिचुएशन और फिनोमेना. मतलब गिव एग्जांपल है कि जो भी टॉपिक आपसे पूछा हुआ है उससे बिल्कुल टू दी पॉइंट आपने नेमिंग में एक लिस्ट की फॉर्म में एग्जांपल्स दे देनी है. आइडेंटिफाई. डिस्क्राइब विद स्पेसिफिक एग्जांपल्स हाउ अ गिवन टर्म और कंसेप्ट इज अप्लाइड इन डेली लाइफ. आइडेंटिफाई में आप लोगों ने ये बताना है कि आपने अपने इन्वायरमेंट में और डेली लाइफ में से आइडेंटिफाई करनी है उस टॉपिक से रिलेटेड एग्जांपल्स, और उन एग्जांपल्स को आपने एक्सप्लेन करना है, डिस्क्राइब करना है. या कोई भी टॉपिक है वो आपकी डेली लाइफ में कहाँ यूज़ हो रहा है, वहाँ उन जगहों पे आपने उसे आइडेंटिफाई करके और उसको एक्सप्लेन करना है. लिस्ट. रिक्वायर्स अ नंबर ऑफ पॉइंट्स जनरली ईच ऑफ वन वर्ड विद नो एलेबोरेशन. वेयर द नंबर ऑफ पॉइंट्स आर स्पेसिफाइड दिस शुड नॉट बी एक्सीडेड. जहाँ आपको आएगा लिस्ट तो वहाँ आप लोगों को कोई लंबा आंसर लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपने टू दी पॉइंट वन वर्ड में जो लिस्ट होगी वो बता देनी है. फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछा जा रहा है कि नेम द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, तो आपने उसमें सिंपल लिखना है मीटर रूल, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज. उसकी कोई डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है. और जहाँ पे अगर उन्होंने दिया हुआ है कि नेम एनी 3 या एनी 4, तो वहाँ पे आपने सिर्फ उतने ही लिखने हैं, उससे ज़्यादा एक्सीड करने की ज़रूरत नहीं है. नेम. मैंशन द कॉमनली यूज वर्ड फॉर एन ऑब्जेक्ट. जहाँ पे नेमिंग पूछी हुई है वहाँ पे उन्होंने कोई भी जो ऑब्जेक्ट जो पूछा गया है उसका कॉमनली यूज नेम जो है वो आप लोगों ने बताना होगा. प्रूफ. डिमॉन्स्ट्रेट बाय लॉजिकल और न्यूमेरिकल एविडेंस. प्रूफ में आपने कोई भी टॉपिक जो है उसे आपने एक्सप्लेन करना है लॉजिक की मदद से या न्यूमेरिकल एविडेंसेस की मदद से उस टॉपिक को एक्सप्लेन करना है. रिकग्नाइज. इन्वॉल्व लुकिंग एट ए गिवन एग्जाम्पल एंड स्टेटिंग व्हाट इज़ मोस्ट प्रोबेबली इज. कि आपको कोई एग्जांपल दी गई है उसे आपने रिकग्नाइज करना है, कि आपने उसे पहले देखना है और फिर आपने उसे एग्जांपल से बताना है कि ये किस टॉपिक से रिलेटेड है या किस से रिलेटेड है, क्या चीज़ है ये, उसे रिकग्नाइज करना है. रिलेट. डिस्क्राइब हाउ फैक्ट्स और फिनोमेना डिपेंड अपॉन, फॉलो फ्रॉम और पार्ट ऑफ वन अनदर.
इसमें यह है कि आपने बताना है कोई भी फैक्ट या कोई भी टर्म, कोई भी जो टॉपिक है वो एक दूसरे पे कैसे डिपेंड करता है, या एक दूसरे को फॉलो कैसे करता है, या एक दूसरे के कैसे से, यानी कि एक दूसरे से रिलेटेड कैसे हैं। रिप्रेजेंट, ड्रा ग्राफ टू शो द कनेक्शन बिटवीन टू वेरिएबल्स। रिप्रेजेंट में आपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देनी है, जो भी आपकी वैल्यूज़ दी गई होंगी, जो भी वेरिएबल्स दिए गए होंगे उनको आपने रिलेट करना है विद द हेल्प ऑफ ए ग्राफ। शो, डिमॉन्स्ट्रेट विद एविडेंस, एविडेंसेस के साथ आपने उस सारे टॉपिक को डिमॉन्स्ट्रेट करना है, एक्सप्लेन करना है। सॉल्व, डिड्यूस इन सिंपल न्यूमेरिकल टर्म्स। सॉल्व का मतलब यह है कि आपने न्यूमेरिकल फॉर्म में, नंबर्स की फॉर्म में उसका आंसर कैलकुलेट करके निकालना है। स्टेट, implies a concise answer with little or no supporting argument, for example a numerical answer that can be obtained by inspection। स्टेट में यह है कि आपको कोई डिटेल, कोई सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, आपने सीधा सीधा उसका सिंपल टू द पॉइंट आंसर लिखना है। यूज़, अप्लाई द गिवन इन्फॉर्मेशन टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। यूज़ में क्या है कि आपको इन्फॉर्मेशन दी गई होगी, आप और साथ ही आपको प्रॉब्लम दिया गया होगा, आपने उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। सो दीज आर द डेफिनेशन ऑफ कमांड वर्ड ऑफ द फिज़िक्स। अगले लेसन्स में मैं आपको, अगली वीडियोस में ये जितने भी आपकी डेफिनेशन हैं कमांड वर्ड्स की, इनको एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करूँगी कि अगर आपके फ़िज़िक्स है तो इसमें हर वर्ड के 2-2, 3-3 क्वेश्चंस जो हैं वो आपको एक्सप्लेन करूँगी।